Good morning, student. Today we will talk also the responsibilities of all tournament committees. I have told you and given some information related the responsibilities of all committees before this video in my last video. There are many responsibilities of all tournament committees and it is divided into three phases. First is pre-tournament work, second during tournament work or responsibility, and third is post tournament responsibility or work. In this video we will talk about during tournament responsibilities and post tournament responsibilities or work. It is clear? So let's go. Listen to me carefully. Okay. Second phase of responsibility of all committees is during tournament responsibilities or work. During tournament work or during tournament responsibilities. It is second phase of responsibilities of all committees. They are following during tournament responsibilities of various committees. Yes, there are many responsibilities when the tournament is running. There are many questions, there are many responsibilities which have very important role. Okay, number first, to check that the sports ground, field court and related sports equipments are in order. Yes, when any tournament is running, any sports event is running, yes, it is the responsibility of committees to check the sports ground, sports field, sport court, yes, where the sports event is going to be conducted. It is the duty of tournament committee during the tournament. yes, यानी कि जैसे ही टूर्नामेंट शुरू होने जाता है तो क्या करते हैं, बीच बीच में ब्रेक होते रहते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, सभी फील्ड को चेक करना, यस, कि उसकी कंडीशन सही है और जितने इक्विपमेंट्स का यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट्स में कोई कमी तो नहीं आई है, सभी प्रॉपर रूप से वर्क कर रहे हैं. इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट. सेकेंड इज to ensure that the sports event tournament is being organized as per schedule. It is also a responsibility during the tournament. What? That schedule which was made by the sports committee, the whole program is running. Yes, or it is your duty to ensure that all tournaments or sports events is running as per schedule. It is the responsibility. Okay, नंबर थर्ड यानी कि नंबर सेकंड, यानी कि आपको मैंने बताया है कि ये भी कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो शेड्यूल बनाया गया था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या सभी मैचेस हो रही हैं, पूरा टूर्नामेंट चल रहा है या मैचेस चल रहे हैं, ये भी देखना क्या कहलाता है, आपका ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है, वर्क कहलाता है. थर्ड, टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट्स to players and officials. It is
our third duty, responsibility during the tournament of whole committee. Yes, यानी कि जब मैचेस चलते हुए होते हैं तो ये जिम्मेदारी भी कमेटीज की होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन सभी कमेटियों की कि मैच के दौरान क्या सभी टीमों के प्लेयर्स को, ऑफिशियल्स को ठीक प्रकार से उनका स्नैक्स, उनका रिफ्रेशमेंट्स समय समय पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिफ्रेशमेंट से लेकर के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेयर्स भूखे हैं और लगातार कंटिन्यू अपनी इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहे हैं। ये भी एक जिम्मेदारी होती है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटियों की। यस। नंबर 4, टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट during the tournament or match. It is also a responsibility regarding the progress of tournament. There may be important announcement with the help of announcement committee during the match, during the event. यानी कि ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैच के दौरान किसी खेल में कोई रुकावट पैदा आ गई है, कोई इक्विपमेंट्स प्रॉब्लम है, कोई टीम कहीं अपने स्थान पर नहीं पहुंची है, तो जो अनाउंसमेंट कमेटी होती है उसका ये मुख्य उद्देश्य भी रहता है कि अनाउंसमेंट के माध्यम में वो सभी टीमों को सूचित कर दे कि आप इस नंबर की टीम को उस ग्राउंड नंबर पर पहुंचना है, उनके मैच का समय यह है, मैच से 10 मिनट 15 मिनट पहले आपको वहां पर प्रेजेंट होना है, उपस्थिति दर्ज करानी है। ये भी ड्यूरिंग द मैच रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी की, जिसको हम अनाउंसमेंट कमेटी कहते हैं, अनाउंसमेंट कमेटी कहते हैं। क्लियर। नंबर 5, टू इम्पार्ट फर्स्ट एड टू द इंजर्ड एथलीट और स्पोर्ट्स पर्संस। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कि जो फर्स्ट एड कमेटी होती है, फर्स्ट एड कमेटी होती है, वो प्रत्येक ग्राउंड पर एक फर्स्ट एड कमेटी ही होनी चाहिए। उस कमेटी की जिम्मेदारी होती है कि ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स इवेंट, अगर किसी एथलेटिक्स को, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, प्लेयर्स को, किसी ऑफिशियल्स को कोई चोट लग गई है या अन्य कोई प्रॉब्लम है तो उसको फर्स्ट एड देना, यस, प्रथम उपचार करना इस कमेटी का मेन मुख्य उद्देश्य होता है ड्यूरिंग द मैच। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स कमेटी या फर्स्ट एड कमेटी। नंबर 6, टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट for records. It is next responsibility during the match. Provide the proper score sheet and save the records. कि मैच के दौरान शीट्स को प्रोवाइड कराना, अन्य इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड कराना, रिकॉर्ड्स को संभाल करके लाना ले जाना, ये भी ड्यूरिंग द मैच रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नंबर नेक्स्ट, to provide and update information to the electronic and print media. It is also the responsibility during the match. Give the information, update information, yes, by the newspaper, by news, media conference. It is the responsibility during the match. मैच के समय बीच बीच में सभी मीडिया को सूचना देना, न्यूज़पेपर में निकलवाना, यस, कॉन्फ्रेंस करना, इन सब के माध्यम से क्या है, सभी को सूचना देना, ये भी कमेटी का काम होता है। एंड लास्ट इज टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन ड्यूरिंग द मैच। देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम
to players or officials, and there should be no any dispute among the players and others. It is the responsibility of committee during the match. Yes, I think it is clear. यानी कि सेकंड फेज था हमारा ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जब मैच चलता हुआ होता है या टूर्नामेंट चलता हुआ होता है उस समय कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कमेटी की। तो पहला मैंने बताया है कि खेल शुरू होने से पहले या खेल के दौरान भी बीच बीच में सभी कोर्ट्स को, फील्ड्स को, ग्राउंड को यस चेक करना, इक्विपमेंट्स को चेक करना, उनको प्रोवाइड कराना। दूसरा कि प्रोग्राम सारे मैच अपने शेड्यूल से चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तीसरा कि प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑफिशियल्स को रिफ्रेशमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है समय से। फोर्थ कि अनाउंसमेंट बीच बीच में करते रहना। यस। 5 यानी कि 5वां नंबर है कि इंजर्ड होने की स्थिति में तुरंत फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना। नंबर 6 प्रॉपर सीट स्कोर प्रोवाइड कराना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। नंबर 7 मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंफॉर्मेशन देना। और लास्ट था आपका कि पूरे टूर्नामेंट में डिसिप्लिन को बनाए रखना। यह था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज आर द मेन पॉइंट ऑफ during the tournament. I think these points are clear for everyone. Okay, after it we will talk about next phase of responsibility of all committees of all tournament committees, which phase name is पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जानते हैं कि जब कोई टूर्नामेंट समाप्त होता है सभी प्लेयर्स चले आते हैं, ऑफिशियल्स चले आते हैं, तो कमेटियों का ही वर्क रह जाता है। जो इतनी साज सज्जा करी है, इतने इक्विपमेंट्स लिए, जो जिसकी जितना इतना बंदोबस्त किया है, उन सभी को सुरक्षित रखना, जहाँ से सामान है वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाना, ये सभी कमेटियों का वर्क होता है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इसी को बोलते हैं पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आई थिंक इट इज क्लियर। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, अबाउट दिस फेज विच नेम मीन्स पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क। देयर आर फॉलोइंग पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कमेटीज। यानी कि जितनी भी कमेटीज होती हैं उन सभी कमेटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन सभी कमेटियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टूर्नामेंट ओवर होने के बाद सभी चीजों को अपने स्थान पर सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। इट इज क्लियर। एंड देयर आर मेनी पॉइंट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड द पोस्ट टूर्नामेंट। To present mementos to the chief guest, यानी कि जब टूर्नामेंट ओवर होता है तो जो चीफ गेस्ट, जिसको हम क्लोजिंग सेरेमनी बोलते हैं, तो उसमें भी मोमेंटो को अवेलेबल कराना। यस, इट इज द मेन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर पोस्ट टूर्नामेंट। मैचेस खत्म हो जाते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो क्लोजिंग सेरेमनी की जाती है। और उसके बाद जब सब कुछ पूरे, यानी कि आप समझ लीजिए कि जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, सारी टीमें चली जाती है, तो उसके बाद भी घर जो मेन वर्क बचता है वो भी पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। सेकंड नंबर, टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू द विनर्स, managing the prize according to the rank, first position, second position, third position holder, arrangement the certificate,
participation certificates or what? Position holder certificates. Yes. नंबर 3, यानी कि आप समझ लीजिए टूर्नामेंट ओवर होने के बाद प्राइज को दिलाना, सर्टिफिकेट लिखवाना, ये सभी क्या होता है? पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है. इट इज क्लियर. नंबर 3, टू कलेक्ट all the records fields related to the sports tournament. Keep the records, collect the records, fill the records related to the winners. It is the responsibility of post tournament. It is the planning after over the tournament. Number 4, to make the payments of the officials and others concerned persons. It is the main responsibility also. Yes, to give the payments of officials which came from outside, which are hired, and concerned persons. यानी कि जो ऑफिशियल्स बाहर से आते हैं उन सभी को उस टूर्नामेंट्स के अकॉर्डिंग, जो भी आपने उनके साथ डील की है उसके अकॉर्डिंग उन सभी को क्या मिलना चाहिए? पेमेंट्स मिलना चाहिए, उनकी धन उनको मिलना चाहिए, या अन्य कोई कंसर्न पर्सनों से संबंधित व्यक्ति. नंबर 5, टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द expenditure of the tournament. Yes, यानी कि इससे रिलेटेड जो और भी खर्च होता है उन सभी का लेखा जोखा रखना. जिसको जो सामान दे दे, हलवाई होता है या भोजन बनाने वाली व्यक्ति होती है, उन सभी को क्या होता है? जो पेमेंट करना होता है वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. Okay. And number 6, to provide detailed results and other necessary information to the media. Yes, it is also main responsibility of after post tournament, after over the tournament. What? Collect the information, collect the result, giving the information of media with the help of newspaper, TV, radio, etc. यानी कि आफ्टर ओवर द टूर्नामेंट ओवर होने के बाद सारा रिजल्ट को मेंटेन करके रखना, सारी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से सभी को प्रोवाइड कराना, जानकारी देना कि कौन सी टीम ने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया है, कहाँ की टीम है, यस, कौन कौन उस टीम के प्लेयर्स हैं, टीम कोच कौन है, मैनेजर कौन है, कहाँ की टीम है, ये सारी इंफॉर्मेशन देना. किसने गोल्ड जीता, किसने सिल्वर जीता और किसने ब्रॉन्ज जीता. ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? पोस्ट ऑल कमेटीज की होती है. जितनी कमेटीज सबकी कमेटी की होती हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं. एंड इट इज द पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज. आई थिंक इट इज क्लियर माय डियर. एट लास्ट आई एम गोइंग टू समराइज दिस पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज. यस, यानी कि टूर्नामेंट ओवर होने के बाद कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सभी कमेटियों की. पहला मैंने आपसे बताया है मोमेंटो प्रोवाइड कराना, चीफ गेस्ट हो या मे बी अदर वैल्यूएबल वीआईपी पर्सन. सेकेंड, प्रोवाइड द सर्टिफिकेट एंड प्राइज ऑफ विनर्स एंड पार्टिसिपेशन प्लेयर्स. टू कलेक्ट द रिकॉर्ड्स related the tournament. Number 4,
give the payments of officials and concerned person. Number 5th, preparation of the budget and money related to the tournament, provide the detailed result and information to the media with the help of newspaper and press conference. Okay, so my dear student, it is clear. यानी कि टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कमेटियों को गठित किया जाता है, उनको बनाया जाता है, और भिन्न भिन्न प्रकार की कमेटी होती है। मैंने 12 प्रकार की कमेटी के बारे में आपको बताया जो मेन होती है। अब कमेटीज की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो कमेटी की बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिसको 3 फेजों में बांटा है। पहला जिसको हम बोलते हैं प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें टूर्नामेंट से पहले जो कार्य किए जाते हैं वो प्री टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। सेकंड, ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात टूर्नामेंट चलते समय कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरा करना, अनाउंसमेंट करना, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो ड्यूरिंग टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। नंबर 3, पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि टूर्नामेंट पूरा होने के बाद किस किस कमेटी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि मोमेंटो प्रोवाइड कराना, प्राइज देना, सर्टिफिकेट देना, और जितने भी IBA का खर्च IBA रखना, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ किसको दिए, जो ऑफिशियल्स आए उनको पैसे देना, और दूसरे वैल्यूएबल पर्सन को पैसे देना, यस, मीडिया के माध्यम से सभी को जानकारी देना। तो बेटा ये जो कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मैंने आपको बताई, जिनको 3 भागों में बांटा गया है, और ये सभी की समझ में ठीक से आ गई होंगी। Okay, my dear students, if you have any questions in your mind, in that condition you can ask me, you can leave the message again or class WhatsApp group. Okay, thank you, have a nice day.